Yes, question answers of this chapter I will discuss today, secularism, and these questions. First is different types of religious practices in your neighborhood, in which you have to write how different communities they pray. कैसे अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग प्रे करती हैं, उनके वर्शिप प्लेसेस, उनकी साइट्स कौन सी होती हैं. You can take example of any 3 or 4 because you can see in your neighborhood different worship places, and according to that people they have their different religious belief. That is example of secularism. हर रोज आप secularism देखते हो. Give example. Yes, Prabal. Yes, very good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The different types of religious practices that we can see in our neighborhood are as follows. A Sikh person worships in Gurdwara to Guru Nanak using Guru Granth Sahib. A Muslim worships in a mosque and their scared book, that is Quran. A Christian worships Jesus Christ in a church and their religious book, that is Holy Bible. And a Hindu worships in a temple to the idols of gods and goddesses. So do you think religious freedom is given to all? Yes, ma'am. Thank you बेटा. It means इस क्वेश्चन में आपने religious practices बतानी है ना, ठीक है. Next is, will the government intervene in self-religious groups if anyone will say that they have to practice infanticide? They have to practice infanticide. Gurnoor Kaur Chawla. हाँ जी. Yes, ma'am. हाँ जी. Yes, the government can intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide. This is because the Indian Constitution clearly states that the government has the right to intervene if there is a threat to social harmony. Also, killing an infant is a crime, and the judiciary is the only authority that can punish a person to death, and no other religion or people can commit the crime of killing someone. Very good. बिल्कुल ठीक कहा आपने. कोई भी रिलीजन जो है वो किसी को मारने के लिए जो है वो नहीं कहता. इट्स अ क्राइम. और अगर कोई रिलीजन में आप कोई पर्सन ये कहता है कि हमारे रिलीजन में तो ये बिलीफ है टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा. यस, गवर्नमेंट शुड इंटरवेन एंड इंटरफेयर. वेरी गुड. नेक्स्ट जो है, तो दैट इज जस्ट फॉर अ टेबल टाइप है, तो यू विल नॉट डू. नेक्स्ट इज that is containing the religious holidays. Religious holidays you can write any 2 or 3 of your choice. So that shows secularism. If holidays are on Eid ul Zuha, then on Christmas, then on Gurpurab, then on Dussehra, and different you can say religious like 13 April Vaishakhi. So that shows in our country secularism. There each and every person they can enjoy their religious festivals. Okay. Next is some example of different views within a same religion. मैंने आपको बताया कि इंडिया में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. क्या एक ही रिलीजन में हो सकते हैं? क्या किसी एक रिलीजन में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं? हाँ जी. एनी अदर स्टूडेंट? अनवे? यस. Can there be disputes and conflicts in one religion? किसी एक रिलीजन के अंदर भी अलग अलग जो है पार्ट्स हो सकते हैं. हाउ? हाँ जी. Yes, ma'am, because every person has different view of an opinion, and every person think, and most of the persons think differently from each other. So that is why. Like Muslims की बात करें ना, तो मुस्लिम जो कम्युनिटीज हैं वो 2 तरह की होती है, शिया एंड सुन्नी. मुस्लिम्स में भी अलग अलग तरह से. यू नो क्रिश्चियंस में भी अलग अलग हैं. कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं. कुछ कैथोलिक्स हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट्स हैं. हिंदू रिलीजन में भी अलग अलग हैं. कुछ जो हैं वो लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं, कुछ लॉर्ड शिवा को मानते हैं, कुछ इस्कॉन जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, कुछ मूर्तियों को मानते हैं, कुछ मूर्ति पूजा पे बिलीव करते हैं.
है ना। तो अलग अलग रिलीजन जो हैं उनके बिलीफ भी अलग अलग हैं, लेकिन रिलीजन के अंदर भी लोगों के बिलीफ अलग अलग। तो आप ये सोचो कि हाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू मेक सेम लॉज फॉर द ऑल, ताकि लोगों का रिलीजियस फ्रीडम जो है वो उनसे ना लिया जाए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द इंडियन स्टेट कीप अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवेन इन रिलीजन। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट रिलीजियस फ्रीडम देती है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, और साथ में हमने पढ़ा है कि यूएस की गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। तो इसका रीजन मैंने बताया है कि गवर्नमेंट जो है उसको इसलिए इंटरफेयर करना पड़ता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोअर कास्ट। सपोज अगर गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को बैन किया तो वो इसलिए किया बिकॉज दीज वर एक्सप्लॉइटेड, दीज वर टॉर्चर्ड। तो उस एक्सप्लॉइटेशन को माइनॉरिटीज जो हैं या रिलीजियस माइनॉरिटीज के ऊपर जो एक्सप्लॉइटेशन होती थी उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि दोनों आइडियाज, कि एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती और दूसरे तरफ अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है। तो इसके लिए आपने यही कहना है दैट द मेन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइड रिलीजियस फ्रीडम एंड एज वेल एज टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज आल्सो, to give them securities to Dalits, or you can say different communities, untouchables, lower caste, so that they can be feel equal in the country, ताकि उनको भी कंट्री में इक्वालिटी जो है वो फील हो। ठीक है, so this was all about this chapter secularism. Now I will start with next chapter, that is why do we need a parliament, why do we need a parliament, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है और पार्लियामेंट होती क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट। जब भी मैं वर्ड पार्लियामेंट बोलती हूँ तो पार्लियामेंट जो है दैट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, कि हमारी कंट्री में जो लॉ है, पुराने टाइम पीरियड में लॉ जो है वो कौन बनाते थे, किंग्स बनाते थे, लेकिन एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट जो है वो क्या है, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। ठीक है, और आपको पता है जब हमारी कंट्री ब्रिटिशर्स के अंदर थी, बिफोर 15 अगस्त 1947 वी वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स, एंड एट दैट टाइम मैनी पीपल दे स्ट्रगल्ड, दे अपोज्ड, आपने पढ़ा है सारा। एंड इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कब बनी थी, 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी ने ब्रिटिशर्स के आगे ये डिमांड रखी, दे डिमांडेड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब है इन्होंने ये डिमांड रखी कि इंडियंस को भी लॉ बनाने का राइट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडियंस को पता होना चाहिए, इंडियंस को पता होगा कि उनके लिए कौन से राइट अच्छे हैं, तो उनको भी लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन काफी हद तक कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड जो है वो नहीं मानी गई, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसमें सबसे पहले इंडियंस को क्या राइट दिया गया, टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यानी कि डिमांड रखी गई 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इसको माना कब गया, 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट माना गया है, जिसमें इंडियंस को फर्स्ट टाइम जो है वो राइट मिला कि वो भी रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के द्वारा इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पुराने टाइम पीरियड में इलेक्ट करने का मेथड क्या होता था, बैलेट पेपर, बैलेट पेपर।
एक पेपर होता था, उस पेपर पे लीडर्स के नाम लिख दिए जाते थे और उसको फोल्ड करके जिस बॉक्स में डालते थे उस बॉक्स को क्या बोलते थे? बैलेट बॉक्स। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर में, मॉडर्न टाइम में ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पर में इलेक्शंस के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज की जाती है जिसमें ऑटोमेटिक काउंटिंग हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं? EVM। EVM का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे कि जो काउंटिंग है वो ऑटोमेटिक काउंटिंग हो जाती है और जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि फेयर रिजल्ट जो है वो सामने आता है। और आपको पता है हमारे इंडिया में सबसे पहली EVM कब यूज की गई थी? 2004। 2004 में EVM जो है वो इलेक्शंस में यूज की गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें अब अपनी कंट्री की पार्लियामेंट के बारे में जानना है। और पार्लियामेंट जो है, बेसिकली पार्लियामेंट जो है वो क्या है? सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। तो जब हम पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं हमें पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के बारे में, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, और सबसे पहले जो पार्लियामेंट हाउस, हमारी कंट्री का पार्लियामेंट का हाउस कहाँ पे है? दिल्ली। इसका मतलब पूरी कंट्री से मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और ये मेंबर जो हैं इनकी मीटिंग कहाँ पे होती है? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हाउस। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू मेक लॉज फॉर द कंट्री, टू प्रोवाइड वेलफेयर पॉलिसीज टू इट्स सिटीजन्स। लेकिन पार्लियामेंट हाउस के जो मेंबर्स हैं इनकी टर्म जो है वो फिक्स नहीं है। दीज कैन बी री इलेक्टेड थ्रू नेक्स्ट इलेक्शंस। तो देखा जाए, चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे लोकसभा के मेंबर्स हैं, चाहे राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इनकी टर्म फिक्स नहीं होती। प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड फॉर 5 years। लोकसभा के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? MP, 5 years। MP का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के मेंबर को भी MP बोलते हैं क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही पार्लियामेंट है ना, हाउस है। MP, चाहे पर्सन लोकसभा का मेंबर है चाहे राज्यसभा का मेंबर है, उसको MP कहा जाता है। तो राज्यसभा जो है इसकी टर्म क्या है? 6 years। ठीक है, 6 years। पार्लियामेंट का मीनिंग क्लियर हो गया? व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? टू मेक लॉज। हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? टू मेक लॉज फॉर द कंट्री, टू कंट्रोल फाइनेंस ऑफ द कंट्री। हमें एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो हमारी कंट्री के फाइनेंस को कंट्रोल करे। ठीक है, एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्रीमैन, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। एंड टू प्रोवाइड वेलफेयर पॉलिसीज, ताकि लोगों को वेलफेयर पॉलिसीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाए। वी नीड पार्लियामेंट। सपोज अगर पार्लियामेंट ना होती, ठीक है, तो क्या होता? अगर पार्लियामेंट ना होती तो क्या होता? सपोज कंट्री का एक ही रूलर होता और सारी पावर्स उसके हाथ में होती, तो वो पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पास कर सकते। बट नाउ द सिनेरियो इज डिफरेंट। लॉ मेकिंग यानी कि कंट्री के लिए एक भी लॉ अगर पास करना है तो उस लॉ को पास करने के लिए अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, लॉ को पास करने के लिए अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे कोई भी बिल पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद फिर राज्यसभा अप्रूव करेगी, फिर फाइनल उसको साइन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है और कितनी स्टेजेस से बिल जो है वो निकल कर जाता है। हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। ठीक है, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज द मेन वेपन। We the people of country, we the citizens, we can elect MP। लेकिन हम कौन से MP को इलेक्ट कर सकते हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं। इसीलिए जब हम इसको कंपेयर करते हैं ना, जब हम कंपेयर करते हैं लोकसभा या राज्यसभा,
ठीक है, तो लोकसभा जो है दैट इज डायरेक्ट हाउस, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। राज्यसभा क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? हम राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर सकते, हम इनडायरेक्टली जो है इसको इलेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है? पंजाब, जब पंजाब में इलेक्शंस होते हैं तो पंजाब में से जो पंजाब की असेंबली है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? एमएलए। एमपी और एमएलए, अब आपको क्लियर हो गया? एमपी और एमएलए में क्या फर्क होता है? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनको कौन इलेक्ट करते हैं? एमएलए। इसका मतलब है हम लोग सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, राज्यसभा को कौन इलेक्ट करते हैं? एमएलए। ठीक है, अब ये आपने बताना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो है दैट इज परमानेंट और लोकसभा जो है दैट इज टेम्पररी, कैन बी चेंज आफ्टर 5 years। ठीक है, लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 543 प्लस 2, टोटल हो गए 545। 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एंड 2 मेंबर्स, यहाँ पर बच्चे आपने याद रखना है 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है? 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। ये कौन होते हैं 12 मेंबर्स? जिन्होंने स्पोर्ट्स या एजुकेशन या सोशल वेलफेयर या बहुत जो है वो कुछ बहुत ज्यादा जो है वो अर्न किया है, जिसके बेसिस के ऊपर प्रेसिडेंट जो हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही वाज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली राज्यसभा का ये जो नंबर होता है वो 245 तक होता है, 245। उसमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है डिफरेंस बिटवीन लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा जो है डायरेक्ट हाउस है, इसको लोअर एल से ही लिखो, लोकसभा मीन्स लोअर हाउस, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। लोकसभा लोक मतलब पीपल को रिप्रेजेंट करती है, लोगों को रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा, राज्य का मतलब स्टेट्स, ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। लोकसभा रिप्रेजेंट पीपल एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स। ठीक है, और साथ ही ये तो हमने देखा कि मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा में क्या फर्क होता है। एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, लोकसभा के जो एमपी होते हैं डायरेक्ट उनका इलेक्शन होता है। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 543, उसमें से 2 नॉमिनेट हैं, तो टोटल कितना हो गया? 545। राज्यसभा के जो एमपी हैं उनमें से 12 मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट, और इनके इलेक्शन कौन करते हैं? एमएलए, एमएलए करते हैं। तो एमएलए कौन होते हैं? एमएलए, एमएलए जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये किसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
सपोज पंजाब। पावर्स की बात की जाए तो पावर्स ज्यादा किसकी हैं, एमपी की हैं कि एमएलए की? एमपी। MPs are more powerful because they represent whole country. MLAs are less powerful because they represent only state. Clear? बाकी इनकी भी टर्म कितनी होती है, 5 years. MLAs, अब मैंने आपको 3 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। MLAs कौन होते हैं? जब भी मैं MLA बोलूंगी इट मीन्स वो किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो स्टेट की असेंबली के मेंबर हैं। जब मैं आपको बोलती हूँ MP मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। लेकिन अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो उनकी टर्म 5 years है, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। अगर वो राज्यसभा के MP हैं तो दे आर इलेक्टेड बाय MLAs, और उनमें से 12 मेंबर्स कैन बी nominated by the president. So this is about the legislator. Legislature का मतलब क्या होता है? जो लॉ बनाते हैं। तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय डायरेक्टली एंड राज्यसभा मेंबर्स दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। This was about the members. ठीक है, अब आपको ये भी फर्क पता होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में क्या फर्क होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव, वो तो मैंने मेंबर्स का डिफरेंस बताया ना। ठीक है, लोकसभा जो है वो सेंटर लेवल पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ किसको कंट्रोल करती है? स्टेट। लोकसभा के मेंबर को बोला जाता है MP और SLA यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को बोलते हैं MLA। ठीक है, अब पावर्स की बात की जाए तो लोकसभा के MP के पास है मोर पावर्स और यहाँ पे हैं लेस पावर्स, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट को कंट्रोल करते हैं, स्टेट से रिलेटेड लॉ बनाते हैं। लॉ बनाने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लिस्ट हैं, तो MLAs कैन मेक लॉ गिवन इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि MLAs यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। लेकिन लोकसभा या पार्लियामेंट किन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है और उन लिस्ट का नाम क्या है? उन लिस्ट का नाम याद रखना। नंबर 1 सेंटर लिस्ट, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, जो पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 2 कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। नंबर 3 रेजिड्यूरी, ये 3 लिस्ट के नाम याद रखने हैं आपने। इन लिस्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं जिनमें स्टेट जो गवर्नमेंट बनाती है, कुछ सब्जेक्ट्स इन तीनों में दिए गए हैं। लॉ बनाने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया है, इनमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। ठीक है, तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में इलेक्शन जब होते हैं ना, तो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरह की होती हैं। एक होती है नेशनल पार्टी, दूसरी होती है स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी। कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन। नेशनल पार्टी पूरी कंट्री के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, रीजनल पार्टी सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट्स। अगर नेशनल पार्टी की बात की जाए
तो INC, सपोज बीजेपी, 2 एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, पूरी कंट्री के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रीजनल मतलब अकाली दल, जो सिर्फ पंजाब में ही फेमस, ये हो गई रीजनल पार्टी। तो जब भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। रीजनल पार्टीज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और नेशनल पार्टी दोनों ही, यानी कि लोक पार्लियामेंट के लिए भी और स्टेट्स में भी कर सकती हैं। ठीक है, नेशनल पार्टी दोनों में ही कर सकती है, जैसे कांग्रेस बीजेपी लोकसभा के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी। लेकिन रीजनल पार्टी अकाली दल की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ पंजाब के लिए ही, क्योंकि वो सिर्फ पंजाब की रीजनल पार्टी। क्लियर? तो इस तरह से कंट्री में इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाते हैं, और इलेक्शंस में जो लीडर्स जीतते हैं वो क्या बनते हैं, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो वो बनते हैं MP, अगर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं तो वो बनते हैं MLA। क्लियर? And this is the way how elections are conducted and how members are elected and appointed in the parliament. Clear? Yes. अब बच्चे हम इसके बाद पढ़ेंगे how elections are conducted. कंट्री में इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड होती है। यस, ये सारा हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के फंक्शंस। ठीक है, हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के फंक्शंस। इसमें सबसे पहला फंक्शन पार्लियामेंट का क्या होता है, टू सेलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्लियामेंट टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे बनती है, इसके स्टेप्स याद रखो। अब 5 इयर्स के बाद क्या होता है, लोकसभा चेंज हो जाती है। 5 इयर्स के बाद क्या होगा, लोकसभा चेंज हो जाएगी। अब इमेजिन करो कि लोकसभा के इलेक्शंस होने, ठीक है, तो उसके लिए स्टेप क्या होता है, इलेक्शंस। जब कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के लिए क्या किया जाता है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंटर यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि आप ये सोचो लोकसभा के इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस होने हैं कंट्री में, और इन इलेक्शंस में पूरी कंट्री को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वैसे मेंबर्स कितने मैंने बताए, 545, 2 आर नॉमिनेटेड, तो पूरी कंट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 543 पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, इलेक्टोरल एरिया। होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने लीडर्स जो हैं उनको क्या करते हैं, इस प्रोसेस को पता क्या करते हैं, इसको कहते हैं टिकट देना। टिकट, हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपने अपने मेंबर्स को टिकट देती है। टिकट का मतलब होता है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, और न्यूज़पेपर में अलग अलग लीडर्स जो हैं उनका नेम आता है, पार्टी का सिंबल आता है, और इस तरह से इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। और जिस दिन इलेक्शन होते हैं लोग ईवीएम्स में लीडर्स के नेम के आगे, या जो इलिटरेट होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, वो सिंबल्स के आगे बटन प्रेस करते हैं और उनका वोट काउंट हो जाता है। सपोज अगर पर्सन कोई नहीं भी देना चाहता वोट, तो वो नोटा NOTA उसको भी प्रेस कर सकता है कि वो किसी भी लीडर को वोट नहीं देना चाहता। ठीक है,
एंड इस तरह से कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाते हैं और द पर्सन या लीडर या जिस पार्टी को सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं दैट पार्टी इज डिक्लेयर्ड एज विनर, मेजॉरिटी पार्टी। और उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं क्या बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसको बहुत शॉर्ट में लिखोगे। देन ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड whichever party wins with the maximum number of votes the leader of that party is declared as prime minister। वो क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर। कई बार क्या होता है किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते, ऐसे में क्या होता है बहुत ही स्मॉल पार्टीज जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, समटाइम्स ड्यू टू और यू कैन से माइनॉरिटीज, यानी कि कई बार क्या होता है किसी एक पार्टी को वोट्स नहीं मिलते, ऐसे में सो मेनी पार्टीज दे ज्वाइन हैंड्स एंड फॉर्म गवर्नमेंट। और इसको क्या बोलते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन का मतलब होता है मिली जुली सरकार, अलग अलग पार्टीज, जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते। क्लियर? तो इस तरह से अब हमारे पास जो है वो क्या आ गए, प्राइम मिनिस्टर भी आ गए। अब इस मेजॉरिटी पार्टी के जितने भी एमपी जीते हैं, जितने लोगों को नंबर ऑफ सीट, सपोज 250 एमपीज जीते हैं किसी एक पार्टी के ना, जिस पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट, तो अब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि इनमें से किन किन को क्या क्या जो है वो पोस्ट दी जाए, किसको मिनिस्टर बनाया जाए। ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।